السلام علیکم ناظرین، میں نے کمانڈو شیروان سے کہا، مسلمانوں کا یہ جلاد اور سینکڑوں بے گناہ کشمیری مسلمان بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قاتل امرتسر میں جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ ڈوگرا رجمنٹل ہیڈ کوارٹر سے صوبے دار درگاہ داس کے گھر کا صرف اتنا ہی ایڈریس مل سکا تھا کہ امرتسر کے بازار مئی سیوا کی ایک گلی میں اس کا آبائی مکان ہے۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، صوبے دار درگاہ داس زخمی ہے اور ابھی تک وہ فوجی سروس میں ہی ہے۔ امرتسر میں وہ ضرور فوجی یا سول ہسپتال میں ہوگا۔ میں نے کہا، یہ اور بھی اچھی بات ہے، اسے تلاش کرنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ امرتسر میرے لیے کوئی نیا شہر نہیں ہے، میں اس شہر کی ایک ایک گلی سے واقف ہوں۔ اسلام کے اس ازلی دشمن اور کشمیری مسلمانوں کے قاتل نمبر 1 کو ہلاک کرنے اور اس سے بے گناہ کشمیری مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کا میرا عزم دیکھ کر کمانڈو شیروان نے مجھے اس آپریشن پر جانے کی اجازت دے دیا، لیکن ساتھ ہی کہا، تم ہمارے بڑے اچھے قیمتی کمانڈو ہو، تم صرف ایک آدمی کو ہلاک کرنے کا مشن لے کر جا رہے ہو، جو تمہارے جیسے تجربہ کار اور بے مثال کمانڈو کے لیے ایک معمولی مشن ہے، لیکن اس میں تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے تمہاری فکر رہے گی۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد جتنی جلدی واپس آ سکو، واپس ہمارے پاس پہنچ جانا، یہاں ہمیں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہوگا کمانڈر۔ اس نے کہا، امرتسر میں جاتے ہی تم اپنے مجاہد جہانگیر سے رابطہ قائم کرنا، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے وائرلیس پر خبر کر دینا۔ ستمبر کا مہینہ گزر چکا تھا، اکتوبر کے مہینے کا خوشگوار موسم شروع ہو گیا تھا۔ دھوپ میں وہ تیزی باقی نہیں رہی تھی اور راتوں کا خنکی ہونے لگی تھی۔ میں نے اورنگزیب کی ایک بھورے رنگ کی پرانی جیکٹ پہن لی تھی، پتلون میں نے اپنی ہی پرانی پہنی ہوئی تھی۔ ہم نیا لباس کبھی کبھار ہی پہنتے تھے، اکثر پرانی جیکٹیں اور پتلونیں پہنتے تھے تاکہ خواہ کسی کی ہم پر نظر نہ پڑے۔ میں نے زہریلی سوئیوں والا بال پوائنٹ پستول اور کچھ انڈین کرنسی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ زہریلی بال پوائنٹ میں نے جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے رات کے کس وقت کس طرف سے نکلنا ہے اور کس جگہ بڑی سڑک پر پہنچ کر جموں جانے والی بس پکڑنی ہے۔ شروع رات میں کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیب سے رخصت ہو کر خفیہ کمین گاہ سے نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں گھاٹیوں اور کھڈوں میں سے گزرتا بڑی سڑک پر پہنچا، وہاں سے لاری پکڑی اور جموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جموں سے ریل گاڑی میں سفر کرنے کی بجائے لاری میں سوار ہو کر جلندھر آیا۔ جلندھر سے ٹرین پکڑی اور امرتسر پہنچ گیا۔ میری داڑھی اور مونچھیں کافی بڑی ہوئی تھیں، مونچھیں میں نے ہونٹوں کے اوپر سے ترشوا لی تھیں۔ داڑھی اور سر کے بالوں کو میں نے گردن پر کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو فوراً سکھ بن سکوں۔ میں اس لیے میں بھی نوجوان لگتا تھا۔ امرتسر میں دن ڈھل رہا تھا جب پہنچا اپنے آدمی جہانگیر کی دکان پر جانے کے لیے۔ مجھے شام کا اندھیرا پھیل جانے کا انتظار کرنا تھا، چنانچہ میں امرتسر کے سیڑھیوں والے ریلوے پل کے قریب ایک ہندو کی چائے کی دکان میں چائے منگوا کر بیٹھ گیا۔ دکان میں کچھ ہندو اور 2-3 سکھ بھی بیٹھے تھے، وہ جنگ ستمبر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے اور بھارتی حکومت نے اپنے عوام سے اصل حقائق چھپائے ہیں۔ ایک سکھ کہنے لگا، مہاراج، اگر لاہور کی بس ہمارے فوجی امرتسر لے آئے تو لاہور پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ دوسرا سکھ بولا، ہماری فوج بزدل نکلی، ورنہ پاکستان کبھی کھیم کرن پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری چاچی چاچا کھیم کرن سے بھاگ کر امرتسر آ گئے تھے، انہوں نے خود پاکستانی فوج کو کھیم کرن میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ایک ہندو بولا، مہاراج، ہم اس وقت اسی دکان پر تھے جب ہمارے فوجیوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے ٹرک ادھر سے گزرے تھے۔ دوسرا ہندو کہنے لگا، مہاراج، اتنی زیادہ فوج کے ساتھ بھی ہم لاہور کے ایک محلے پر قبضہ نہیں کر سکے، یہ تو بڑی حیران کر دینے والی بات ہے۔ ہم تو اپنا کاروبار امرتسر سے جلندھر لے جا رہے ہیں۔ سکھ نے اسے غصیلی آواز میں کہا، لالا جی، تم بزدل ہو، سکھ فوجی بزدل نہیں ہے، ہماری سکھ فوج کو تمہارے ہندو جرنیلوں نے مروا دیا ہے۔ وہاں گرمی سردی ہونے لگی تو دکان کے مالک نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ ختم کر دیا۔ جب باہر شام کا اندھیرا پھیل گیا اور دکان کی بتیاں روشن ہو گئیں تو میں دکان سے نکل آیا اور جہانگیر کی دکان کی طرف چلنے لگا۔ وہ اپنی دکان پر ہی تھا۔ مجھے اس نے دکان میں داخل ہو کر کاؤنٹر پر رکھی ہوئی ٹیکسٹ کی ہندی انگریزی
اور गुरमक्खी की किताबों पर नजरें झुकाए खड़े देखा तो मेरे करीब आ गया। दुकान में एक हिंदू अपने बच्चे के साथ किताबें देख रहा था। जहांगीर ने मुझसे वहाँ की हिंदी गोरखमक्खी अमेज पंजाबी में पूछा कि मुझे कौन सी किताब चाहिए। मैं भी वहाँ की गोरमक्खी और हिंदी अमेज पंजाबी में ही बात किया करता था। चूँकि अब मुझे हिंदी गोरमक्खी के वो अल्फाज याद करने पड़ते हैं, इसलिए अपनी दास्तान बयान करते हुए मैं उर्दू ज़बान में ही मुकालमे लिख जाता हूँ। मैंने एक किताब उठाकर कहा, मुझे ऐसी 2 किताबें चाहिए। जहांगीर ने कहा, आप यहाँ ठहरें, मैं दूसरी किताब भी ला कर देता हूँ। ये कहकर वो अपनी गद्दी की तरफ चला गया। वहाँ से वो उसी तरह की एक और किताब उठा कर लाया और मेरे आगे रखते हुए बोला, ये लीजिए, कीमत इसके अंदर लिखी हुई है। मैंने वर्क उलट कर देखा। अंदर कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, सिनेमा की गैलरी में पहुंच जाओ। मैंने किताब वहीं रहने दिया, कागज़ का टुकड़ा उठा लिया और दुकान से बाहर निकलकर सीधा उसी सड़क पर कुछ दूर जाकर जो सिनेमा हाउस था वहां चला गया। पहला शो शुरू होने वाला था। मैंने गैलरी का टिकट लिया और गैलरी में आकर बैठ गया। जहांगीर इंट्रोल के बाद दुकान बंद करके आया। मैंने उसे सारी बात बताई। कहने लगा, मैं अभी घर जाता हूँ, तुम फिल्म ख़त्म होने के बाद आ जाना। फिल्म 9 बजे रात ख़त्म हुई। जहांगीर के घर का मुझे पता था। मैं उसके घर आ गया। उसने खुद ही चावल और सब्ज़ी वगैरह पकाई हुई थी। हमने मिलकर खाना खाया, फिर चाय पी और बातें करते रहे। कहने लगा, अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो गया और सूबेदास दरगाहदास को तुमने हलाक कर दिया तो उधर से सीधा वापस जम्मू श्रीनगर की तरफ निकल जाना, इस तरफ मत आना। मैंने कहा, यह बात मैंने पहले ही सोच रखी है। उसने कहा, अगर तुम्हारे बयान के मुताबिक सूबेदास दरगाहदास जख्मी हो गया था तो वो सिविल अस्पताल में हो गया, तुम्हें पहले अस्पताल जाकर देखना चाहिए। मैंने कहा, मैं पहले उसके महल्ले से पता करना चाहता हूँ। बाजार में सेवा की सारी गलियों से मैं वाकिफ़ हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी है। दूसरे रोज़ मैं दिल निकलने के थोड़ी देर बाद बाजार में सेवा की तरफ चल पड़ा। जिन लोगों ने अमृतसर देखा हुआ है या जो अमृतसर के रहने वाले हैं, उन्हें मालूम होगा कि बाजार में सेवा शहर के अंदर गुंजान इलाके में श्री दरबार साहब के करीब वाक़ है और यह सारा इलाका हिंदू सिखों का है। यहाँ पाकिस्तान क़याम से पहले भी शायद ही किसी मुसलमान का मकान हुआ। ये हिंदू सिख अक्सरियत का इलाका था। हम मझेड़ से जब अमृतसर आए थे तो दरबार साहब को देखने ज़रूर जाते। और जब मैं अमृतसर के स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक सिख क्लास फेलो बाज़ार में सेवा में रहा करता था, जिसके घर में गुड़ियाँ उड़ाने आया करता था। अब यह बाज़ार ज़्यादा गुंजान और गंदा हो गया था। दुकानों के थड़ों पर भी दुकानें खुल गई थीं। ज़्यादा दुकानें सिखों की थीं। हिंदू सिख लोग सुबह दुकान बड़ी जल्दी खोल लेते हैं। यहाँ ज़्यादा दुकानें मनियारी की थीं। किताबों और कापियों की दुकानें भी थीं। एक दुकान पर सिखों की कृपानें और तलवारें लटक रही थीं। एक बूढ़ा हिंदू पंसारी दुकान पर बैठा खुरल में कुछ रगड़ रहा था। मैंने उसे जाते ही नमस्कार किया और कहा, महाराज, मुझे सूबेदास दरगाहदास जी को मिलना है। उसका मकान कहाँ है? मैं जम्मू से आया हूँ। हिंदू पंसारी कहने लगा, सूबेदार का मकान 3 गलियाँ छोड़कर छोटी गली में पहला मकान है, मगर वो अमृतसर में नहीं है। सुना है कहीं बाहर चला गया है। तुम उसके मकान पर जाकर पता कर लो। वहाँ उसका बेटा कालीदास रह रहा है। मैं उस गली में आ गया जहाँ पहला मकान मुझे सूबेदास दरगाहदास का बताया गया था। मकानों में फंसा हुआ 3-4 मंजिला बोसीदा मकान था, जिसके थड़े के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी बजाई। ऊपर से एक औरत ने झांक कर पूछा कि किससे मिलना है। मैंने हाथ बांध कर कहा, बहन जी, ज़रा कालीदास जी को नीचे भेजना, मैं जम्मू से आया हूँ। थोड़ी देर बाद एक पलपले बदन वाला जरदुरू नौजवान सीढ़ियाँ उतरकर मेरे सामने आ गया। उसने धोती पहनी हुई थी, बदन पर सिर्फ एक परना लिपेटा हुआ था। मैंने कहा, महाराज जी, मैं जम्मू से आया हूँ। मेरा नाम कुलदीप चंद है। सूबेदार जी के नाम उनके एक फौजी दोस्त का पैगाम लाया हूँ। सूबेदार जी घर पर हूँ तो उनसे मिला दीजिए। ये नौजवान कालीदास ही था। कहने लगा, महाराज, पिताजी तो लुधियाने कौशलिया बहन जी के पास चले गए हैं। मैंने एक सेकंड के लिए कुछ सोचकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से आगे अम्बाले ही जाना है। मैं रास्ते में लुधियाने उतरकर सूबेदार जी से मिल लूँगा। मुझे उनका लुधियाने का पता लिख दीजिए। कालीदास बोला, अभी लिख कर आता हूँ।
وہ اوپر گیا، اوپر کسی کاغذ پر لدھیانے کا ایڈریس لکھ کر لیا، مجھے کاغذ کا پرزہ دیتے ہوئے بولا، کوشلیہ بہن ہماری چھوٹی بہن ہے، اس کا گھر لدھیانے کے چوڑے بازار میں ہے، وہاں کسی سے امرت لال بجلی والے کے گھر کا پتہ پوچھ لیں، کوشلیہ بہن کا خاوند بجلی کے دفتر میں الیکٹریشین ہے، میں نے پتہ بھی کاغذ پر لکھ دیا ہے، بڑی کرپا ہے آپ کی، رام رام ہے۔ میں واپس مڑا تو کالی داس نے کہا، کوئی چائے پانی نہیں پیا آپ نے؟ میں نے کہا بڑی کرپا ہے، اور میں گلی سے نکل کر بازار میں سیوا میں آ گیا، اور وہاں سے واپس جہانگیر کی دکان پر جا کر اسے ساری بات بتائی۔ اس وقت دکان میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، لدھیانہ میں ہمارا ایک آدمی موجود ہے، تم اس سے جا کر ملو اور صوبہ داس درگاہ داس کا سراغ لگاؤ اور اسے ٹھکانے لگانے کے بعد وہیں سے جموں کی طرف نکل جانا۔ جہانگیر نے مجھے لدھیانے میں اپنے مجاہد کا نام پتہ بتا دیا۔ یہ نام پتہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اگرچہ اب وہ مجاہد وہاں نہیں ہے، پھر بھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کا نام اور پیشہ یہاں فرضی لکھوں گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا اسلامی نام گلریز تھا اور وہ ہندو نام بابو رام کے نام سے لدھیانے کے ریل بازار میں فوٹوگرافی کی دکان کرتا تھا۔ میں اسی دن ٹرین کے ذریعے لدھیانے روانہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، ذمہ دار کمانڈو وقت کی قیمت کو پہچانتا ہے، وہ کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ لدھیانے پہنچ کر میں سیدھا بابو رام فوٹوگرافر کی دکان پر گیا۔ جہانگیر نے کسی طریقے سے اسے میرے آنے کی اطلاع کر دی تھی، میرا حلیہ بھی بتا دیا تھا، اس کے باوجود مجھے کوڈ لفظ بھی دیا گیا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ فوٹوگرافر کی ایک چھوٹی سی دکان میں ایک درمیانی عمر کا آدمی کھدر کا کرتا، کھدر کا پاجامہ اور نہرو واسکٹ پہنے ایک فوٹو کو فریم میں جڑ رہا ہے، ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی۔ میں دکان میں داخل ہوا تو اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ تصویر فریم میں لگا کر اس نے عورت کو دیا اور کہا، یہ لو بہن جی، اب یہ اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی ہے۔ ہندو عورت تصویر لے کر دکان سے چلی گئی تو بابو رام نے میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا چاہیے مہاشا جی؟ میں نے کوڈ لفظ بولا تو اس نے آہستہ سے کہا، اندر اسٹوڈیو میں چلو، ابھی فوٹو کھینچ دیتا ہوں۔ دکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا ہوا تھا جہاں 3 پاؤں والا ایک کیمرہ اور سامنے دیوار پر سنہری والا پردہ لگا تھا۔ پردے کے آگے لکڑی کی منقش کرسی رکھی ہوئی تھی، یہاں ہمارا آدمی گاہکوں کے فوٹو بناتا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ بینچ بچھا ہوا تھا، میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اپنا آدمی جس کا نام میں نے بابو رام بتایا ہے آ گیا۔ کہنے لگا، جہانگیر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے، تم جس مسلم کش کافر کی تلاش میں یہاں سے آئے ہو وہ لدھیانے میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، پھر وہ کہاں ملے گا؟ بابو رام بولا، اس کو جان کا دھڑکا لگا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ کشمیری مجاہد اس سے کشمیری مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کسی جگہ بھی قتل ہو سکتا ہے۔ فوج سے وہ ایک بار پھر سبق دوش کر دیا گیا ہے، وہ زخمی ہو گیا تھا، یہاں امرتسر میں اس کا علاج ہوتا رہا ہے۔ یہاں تمہارے آنے سے ایک دن پہلے ہمارے ایک حریت پرست نے اس پر حملہ کیا تھا، مگر وہ جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ لدھیانے سے بھی فرار ہو کر کسی نامعلوم مقام پر چلا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس شہر میں ہے اور کہاں چھپا ہوا ہے؟ کوئی دوسرا حریت پرست اسے ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو یا نہ ہوا، لیکن میں اسے ہر حالت میں قتل کر کے اسے ہزاروں بے گناہ نہتے کشمیریوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بابو رام نے قدر توقف کے بعد کہا، یہ معلوم کرنا پڑے گا، مجھے کم از کم آج کے دن اور رات کی مہلت دے دو، میرے آدمی یہ سیکرٹ معلوم کر لیں گے۔ بابو رام اپنی دکان کے اوپر ایک چوبارے میں رہتا تھا، میں نے بھی رات وہیں گزاری۔ بابو رام نے اس وقت اپنے جاسوس صوبہ داس درگاہ داس کا اتا پتہ معلوم کرنے کے واسطے روانہ کر دیے تھے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت بابو رام کھانے کے ٹائم پر دکان بند کر کے اوپر چوبارے میں میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، صوبہ داس درگاہ داس لدھیانے سے کلکتے جا کر کسی جگہ رپوش ہو گیا ہے، کلکتے میں اپنا ایک آدمی بہو بازار میں چائے کا ہوٹل چلاتا ہے، مسلمانوں کے اس خونی قاتل کو تلاش کرنے میں وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ بابو رام نے مجھے کلکتے میں اپنے آدمی کا نام اور اس کی دکان کا ایڈریس اور اس سے مل کر جو کوڈ لفظ بولنا تھا وہ بتایا، اور کہنے لگا، اپنا یہ آدمی بہت ہوشیار ہے اور وہ کلکتے میں ایک قوم پرست مسلمان کی حیثیت سے کافی مشہور ہے، وہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسلمانوں کا خونی درگاہ داس ہے، جہاں کہیں بھی ہوگا
وہ اس کا सुराग लगा लेगा। मैं उसे खुफिया तरीके से तुम्हारे आने की इतला भी कर दूंगा। मैं उसी रात को हुड़ा एक्सप्रेस में सवार होकर कलकत्ते की तरफ रवाना हो गया। अपने आदमी बाबू राम ने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि मैं कलकत्ता में अपने आप को पंजाब कांग्रेसी मुसलमान जाहिर करूँ और अपना कोई हिंदवाना नाम भी रख लूँ। लुधियाना स्टेशन पर रवाना होने से पहले उसने मेरे माथे पर हिंदू वाला लाल तिलक भी लगा दिया था। मेरे लिए हिंदू बनना बड़ा आसान था। मैं हिंदी गुजराती ज़बानों पर काफ़ी अबूर रखता था। हिंदू देवमाला मैंने सारी की सारी पढ़ रखी थी। संस्कृत ज़बान भी थोड़ी बहुत समझ सकता था। वेदों का भी मैंने मुताला कर रखा था। बंगला ज़बान में भी थोड़ी थोड़ी समझ लेता, अगरचा बोल नहीं सकता था। और कलकत्ते के एक दो फेरे पहले भी लगा चुका था। कलकत्ता शहर मेरे लिए कोई नया शहर नहीं था। ट्रेन कलकत्ता शहर के हुड़ा स्टेशन पर पहुंची तो मैं रिक्शे में सवार होकर सीधा बहू बाज़ार पहुंच गया। बहू बाज़ार कलकत्ते का एक कारोबारी बाज़ार है और उसी बाज़ार में दुनिया की हर शय की दुकान मौजूद है। बाबू राम ने मुझे लुधियाने में ही अपने बहू बाज़ार वाले मुजाहिद की तस्वीर दिखा दी थी। बहू बाज़ार में काफ़ी रौनक थी। बंगाली मर्द और साड़ियों में मलबूस बंगाली औरतें खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ थीं। बाज़ार में से रक्षा और हाथों से खींची जाने वाली लंबी लंबी रेहड़ियाँ भी नजर आ रही थीं। मुझे अपने आदमी की चाय की दुकान की तलाश थी। भारत के मशरकी और जनूबी इलाकों में चाय काफ़ी बहुत पी जाती है। ये मरतूब इलाके हैं, साल में बारिशें बहुत होती हैं। यहाँ दूध घी का वो रिवाज नहीं है जो हमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में देखने को मिलता है। बाबू राम ने मुझे अपने मुजाहिद का नाम बता दिया था, मगर मैं उसका असली नाम नहीं लिखूँगा। आप फ़र्ज़ कर लें कि उसका नाम शाहदीन था। जैसा कि मुझे बताया गया था कि शाहदीन कलकत्ते में एक कौम परस्त भारतीय मुसलमान की हैसियत से काफ़ी जाना पहचाना आदमी है। उसकी चाय की दुकान मैंने तलाश कर लिया। लंबी दुकान थी, अंदर कुर्सियाँ मेज़ें लगी थीं। लोग चाय काफ़ी वगैरह पीने में मसरूफ़ थे। बाहर से एक जानिब बंगाली पनवाड़ी का खोखा था, जहाँ दरगाह देवी की शीशे में जुड़ी हुई तस्वीर के आगे लोबान सुलग रहा था। मैंने अपने आदमी शाहदीन को शक्ल से पहचान लिया। वो काउंटर के करीब लोहे की कुर्सी पर बैठा बंगला अखबार पढ़ रहा था। मैंने करीब जाकर ऐसा से कहा, काफ़ी मिल जाएगी। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, अंदर बैठो, मिल जाएगी। मैंने दोबारा कहा, मैं मद्रासी काफ़ी पसंद करता हूँ। तब शाहदीन ने अखबार से नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो उसके करीब एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे शाहदीन से मिलना है। मेरी नज़रें बाज़ार पर लगी थीं। अब उसने मुझे पहचान लिया था और उसने दोबारा अखबार पर नज़रें जमा ली थीं। उसने अखबार का वर्क उलटते हुए पंजाबी में कहा, तो मैं जिसने भेजा है उसका नाम क्या है? मैंने बाबू राम का असली इस्लामी नाम लिया। शाहदीन ने अखबार अपने घुटनों पर रख दिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट को सुलगाया, एक मुझे पेश किया और मेरे सिगरेट को सुलगाते हुए ऐसा से बोला, तुम्हारा कोड वर्ड क्या है? मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए ऐसा से वो कोड लफ्ज़ बोला जो बाबू राम ने मुझे बताया था। शाहदीन ने पीछे किसी नौकर की तरफ गर्दन मोड़ कर देखा और बंगला ज़बान में चीख कर कहा, अच्छा वाला काफ़ी दो साहब को। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, अंदर बैठो। मैं दुकान में जाकर बैठ गया। लड़का काफ़ी का प्याला आगे रख गया। मैं काफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा। मेरी निगाहें शाहदीन पर लगी थीं। वह दुकान से उतरकर बाजार में पान सिगरेट खोखे के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। बाजार में पहले उसने दाएं जानब देखा, फिर बाजार बड़ी बेनियाजी से दूसरी जानब देखा। यकीनी तौर पर वो ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला तो नहीं लगा हुआ। जो आदमी दुश्मन मुल्क में किसी जगह टिक कर अपने मुल्क के लिए जासूसी करते हैं, वो खुफिया पुलिस वालों के चेहरों से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क के मफादात के लिए जासूसी करने का हर मुल्क को हक होता है। पकड़े जाने की सूरत में एक ख़ास बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जासूस को सज़ा मिलती है, मगर भारत में इस बैनुल-अक़वामी कानून का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। भारत में पाकिस्तान का कोई बाकायदा जासूस मैंने अपने क़याम के दौरान नहीं देखा। अगर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई भी तो वो या तो भारतीय मुसलमान ही था, या जो महज पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान की सलामती की खातिर रज़ाकाराना तौर पर यह काम कर रहा था, या फिर उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर की हुर्रियत परस्त तारीख से था, जो कश्मीर में मुसलमानों पर भारी जुल्म व सितम और जरहाना कब्जे के खिलाफ जंग कर रहे थे। इसके बाद मैं था।
मुझे पाकिस्तान ने भारत में जासूसी करने नहीं भेजा था। पाकिस्तान की हुकूमत को तो मालूम ही नहीं था कि मैं भारत में अपने वतन की सलामती की खातिर सारे धड़ की बाजी लगाए हुए हूँ। मैं अपने तौर पर यह फ़र्ज़ अदा कर रहा था और मेरी कमांडो सरगर्मियों का ज़्यादा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था। शाहदीन का ताल्लुक भी कश्मीर की हुर्रियत परस्त तहरीक से था। कलकत्ते में वो कई बरसों से कौम परस्त भारतीय मुसलमान की हैसियत से चाय का होटल चला रहा था। हकीकत में वो सच्चा कश्मीरी मुसलमान था और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम भी उसके खुफिया मिशन में शामिल था। वादी कश्मीर से इतनी दूर बैठकर वो बरह रास्त जिहाद कश्मीर में हिस्सा नहीं ले सकता था, मगर वो भारतीय हुकूमत और भारतीय मिलिट्री हाई कमांड की सरगर्मियों पर ज़रूर कड़ी निगाह रखे हुए था। उसके आदमी उसे सरकारी हल्के की हर नई खबर ला कर देते थे, जिसे वो लुधियाने बाबूराम को पहुंचा देता था और बाबूराम उसे श्रीनगर में हुर्रियत परस्तों तक पहुंचा देता था। जंग सितंबर में हजीमत उठाने के बाद भारतीय हुकूमत और भारतीय फौजी हाई कमांड की खुफिया सरगर्मियों में बेहद इजाफा हो गया था और ज़ाहिर यही होता था कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से 65 की जंग की अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती है और उसने हर किस्म की फ़ौजी तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी हैं। इन हक़ की तस्दीक बाद में शाहदीन ने भी किया। मैं दुकान के अंदर बैठा खामोशी से काफ़ी पीता रहा। शाहदीन अब दुकान में आकर कुर्सी पर बैठ गया था और एक बंगाली गाहक से बंगला ज़बान में हंस हंस कर बातें कर रहा था। दुकान में गाहक कम हो गए थे। मेरे आसपास की मेज़ों पर कोई गाहक नहीं था। शाहदीन शायद इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। जब उसने देखा कि मेरे इर्द गिर्द कोई गाहक नहीं है तो वो सिगरेट के कश लगाता मेरे करीब आकर बंगला ज़बान में बोला कि काफ़ी मुझे पसंद है। मैंने बंगला ज़बान में ही भालू कह दिया। वो मेज़ पर दोनों हथेलियां जमा कर झुक गया और आहिस्ता से उर्दू में बोला, होड़ा स्टेशन के नंबर 3 प्लेटफार्म पर मेरा इंतज़ार करो। इसके साथ ही वो मेज़ से पीछे हट गया और सिगरेट का कश लगाकर मुलाजिम को बंगला में कुछ हिदायत देने लगा। जो पैगाम उसने मुझे देना था दे दिया था। मैं चाय की दुकान में कुछ देर बैठने के बाद उठा और बाज़ार में आकर उस तरफ चलने लगा जिधर से मैं बाज़ार में दाखिल हुआ था। बाज़ार में ही मैंने एक रिक्शा लिया और उसे होड़ा स्टेशन चलने को कहा। अगर आप कलकत्ते गए हैं और होड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हैं तो आपको याद होगा कि कलकत्ते के 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं। एक का नाम सियालदह है, दूसरे का नाम होड़ा है। पंजाब और भारत के दूसरे सूबों से आने वाली ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों पर ही आकर ठहरती हैं। होड़ा का रेलवे स्टेशन लंबे लंबे प्लेटफार्मों वाला है। लोहे की छत बहुत ऊंची है। मैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर आकर एक बेंच पर बैठकर सोचने लगा कि मुझे किस जगह इत्मीनान से बैठकर शाहदीन का इंतज़ार करना चाहिए। वहाँ कोई रिफ़्रेशमेंट रूम भी नहीं था। किताबों और चाय के स्टॉल ज़रूर थे। मैं लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। ये भी चाहता था कि शाहदीन मुझे दूर से देख ले। चुनाचे मैं एक बुक स्टॉल के कोने की जानिब लोहे के बहुत बड़े संदूक पर बैठ गया जो रेलवे वालों का ही लगता था। शिकल और हुलिये से मैं पंजाब का कोई हिंदू नौजवान लगता था। मेरी दाढ़ी और सर के बढ़े हुए बालों से यह तासुर मिलता था कि मैं मजहबी टाइप का हिंदू हूँ। जहरीली सुई वाला बाल पॉइंट उस वक्त भी मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में महफूज था। इसके अलावा कुछ इंडियन करेंसी भी थी। माथे पर लाल तिलक लगा हुआ था। कलकत्ते के आसमान पर बादल छाने लगे थे। ठंडी हवा चल रही थी। लगता था कि बारिश होगी। प्लेटफार्म पर कोई ट्रेन आने वाली थी। शायद उसी ट्रेन को वहां से वापस भी जाना था। मुसाफिर आने लगे थे। कोली सरों पर और ट्रालियों में सामान लादे आ रहे थे। ये बंगाली मुसाफिर थे। इनमें हर उम्र की नौजवान और बूढ़ी बंगला औरतें और मर्द थे। किसी को मेरी तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी। हर तरफ बंगला ज़बान बोली जा रही थी। एक सिख बच्चा गोद में उठाए अपनी बीवी के साथ मेरे करीब से पंजाबी बोलता गुजर गया। मेरी निगाहें अपने आदमी शाहदीन को ढूंढ रही थीं। मुझे वहां बैठे काफ़ी देर हो गई थी। इतने में एक ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर रुक गया। वहां शोर मच गया। इसी दौरान मुझे शाहदीन दिखाई दिया। वो एक तरफ से मेरी जानिब ही चला रहा था। उसने मुझे दूर से देख लिया था। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। वो भी मेरे पास आकर लोहे के संदूक पर बैठ गया। वो सिगरेट पी रहा था। सामने ट्रेन की तरफ देखते हुए उसने पंजाबी में मुझे कहा, 6-7 कदम का फासला डालकर मेरे पीछे पीछे चले आओ।